لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ وہ کمیٹی کوئی دال بیچنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں نہیں بیٹھی۔ باجوڑ کی لوگوں کی طرف سے 6,500 کالے شرف المروت کے موبائل پہ ان کو موصول ہوئی ہے۔ کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ پارٹی کے ایک سینئر ممبر کو آپ گالی گلوچ دو تو پختون بندہ ہے آپ کی طرح، وہ تو نہ ڈرتا ہے، وہ پنجاب میں نہیں ڈرا، وہ کراچی میں نہیں ڈرا، وہ پشاور میں نہیں ڈرا، تو آپ لوگوں کے کالوں سے وہ کہاں ڈرے گا؟ تو عمران خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو میڈیا والوں نے کہا جی سر آ رہی ہے آواز۔ اور اس کے بعد عمران خان نے جو باتیں کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج دو اہم موضوع پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے باجوڑ کی طرف جاتا ہوں، اس کا آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں کہ کس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ جناب PK-22 NA-8 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے دو امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پارٹی کا کیا فیصلہ ہے، عوام کیا چاہتی ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج شرف المروت نے وہاں جلسے میں کیا کہانی سنائی، کس نے کالز کی شرف المروت کو کہ آپ باجوڑ نہ آئے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اس سیٹ کے اوپر، اور یہ سیٹ دن بدن کشیدگی کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرا، آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا کے سامنے عمران خان نے کس طرز عمل سے بات چیت کی اور کیا طریقہ اختیار کیا، عمران خان کو کہاں پہ رکھا تھا، میڈیا کتنا دور کری تھی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باجوڑ NA-8 PK-22 کے اوپر آتے ہیں۔ ایک سیٹ، ایک ہی پارٹی کے دو امیدواران، جناب شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب، مد مقابل گل ظفر، دونوں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب جبکہ مبارک زیب کا انتخابی نشان نلکا ہے، جو کہ ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور گل ظفر کا انتخابی نشان گھوڑا ہے، جو کہ سنی اتحاد کونسل کا امیدوار ہے۔ اگر سنی اتحاد کونسل کا امیدوار الیکشن لڑنے کا کہے گا، اس کا انتخابی نشان گھوڑا ہی ہوگا۔ جبکہ آنے والے دنوں میں کئی حلقوں پر، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے کئی حلقوں پر الیکشن ہونے ہیں، اور یہ الیکشن جس طرح 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس کے بعد دوسرا بڑا الیکشن ہوگا۔ تو جبکہ PK-22 اور NA-8 کا سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے درمیان ایک متنازع بنا ہوا ہے۔ پارٹی میں ایسے کچھ ممبر ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ممبر چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو دی جائے، لیکن ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ اب جبکہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ سیٹ گل ظفر کو دی جائے، جس نے پہلے بھی یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جیتی تھی۔ اب زیادہ تر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، دو کوڑی کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے سامنے موبائل رکھتے ہیں، پارٹی کے خلاف، پارٹی کے جو مشترکہ کمیٹی ہوتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتی ہے، اس کے خلاف اپنے سامنے موبائل رکھ کر ویڈیو کرتے ہیں کہ شیر افضل یہ کر رہا ہے، شیر افضل وہ کر رہا ہے، بریسٹر گوہر یہ کر رہا ہے، علی امین گنڈاپور یہ کر رہا ہے، بہت سارے پروپیگنڈے دیکھے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ وہ کمیٹی کوئی دال بیچنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں نہیں بیٹھی، وہ ہر روز، ہر دن عمران خان کے ساتھ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرتی ہے، اس کو ہر چیز بتاتی ہے کہ گل ظفر کے سیٹ کے اوپر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، مبارک زیب کو حق ملنا چاہیے، لیکن اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ سیٹ جیتنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس سیٹ کے اوپر ایک ہی پارٹی کے دو شخص لڑیں گے تو تیسرا آپ سے بازی لے جائے گا۔ ابھی میں تھوڑی سی بات ریحان زیب کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان زیب کا حق بنتا تھا، نڈر بے باک لڑکا تھا، غیرت مند تھا، پاکستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، پختونوں کے لیے اس نے انٹرنیشنل لیول پر آواز اٹھایا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنی مفاہمت کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ریحان زیب کو شہید کیا۔
उस वक्त भी रेहान ज़ैब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार था, कागजात नामजदगी उन्होंने जमा की थी, उन्होंने बाजावर से इलेक्शन जीता है, चेयरमैन की सीट उन्होंने जीती है, जो उसका लेवल था वो लेवल उसको मिल चुका है। अब उनको पता था कि गुलजफर उम्मीदवार है, तो पार्टी की खातिर, इमरान खान के खातिर उसको बैठना चाहिए था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रेहान ज़ैब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद NARP के 22 से इलेक्शन मुलतवी होता है, दोबारा इलेक्शन का ऐलान करते हैं। उनके छोटे भाई मुबारक ज़ैब मंजर आम पर आते हैं कि यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अरे बाबा लड़ो, अगर आप पार्टी के साथ मुखलिस हैं, पार्टी के साथ वफादार है, पार्टी ने जो फैसला किया उस फैसले को होने दो, उस फैसले के ऊपर सब्र कर दो, आपको अल्लाह मौका देगा। आप एक वक्त होगा कि आप नेशनल असेंबली के मेंबर बनेंगे। आप बड़े दिल के साथ, इत्मीनान के साथ, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं, तो जो फैसला कमेटी मेंबरान ने किया है उनके ऊपर सब्र करो, उनके ऊपर आपको सब्र करना चाहिए। ज्यादा गहरा नहीं चाहता, लेकिन आज शेर अफजल मरवत बाजावर में जलसे पर जा रहा था, तो उससे पहले जो शेर अफजल मरवत ने वहां जाके खिताब किया, उन्होंने कुछ बातें की। ये बातें भी इस वक्त पख्तूनों की तरफ से, बाजावर के लोगों की तरफ से 6,500 काले शेर अफजल मरवत के मोबाइल पे उनको मौसूल हुए हैं। कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि पार्टी के एक सीनियर मेंबर को आप गाली गलौज दो, उसको धमकाओ, उसको कहो कि बाजावर ना हो। इन 6,000 लोगों ने, 6,000 कॉल्स ने किस मकसद के लिए शेर अफजल मरवत को टारगेट किया, उसको बाजावर आने से मना किया? निहायत ही अफसोसनाक है। पार्टी के एक सीनियर मेंबर को आप इस तरह कॉल्स करते हैं और इस तरह उनको तंग करते हैं। वो तो पख्तून बंदा है आपकी तरह, वो तो ना डरता है, वो पंजाब में नहीं डरा, वो कराची में नहीं डरा, वो पेशावर में नहीं डरा, तो आप लोगों के कालों से वो कहां डरेगा? अगर आप लोग जो गुलजफर के खिलाफ लोग हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करे, तो उस फैसले पे सब्र करें जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमेटी मेंबरान ने किया है। यही आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौजवान को चांस देती है। रेहान ज़ैब मरहूम को भी उन्होंने चांस दिया था, जो उसका लेवल था उस लेवल के ऊपर उनको चांस मिला था। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा, मुबारक ज़ैब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चांस देगा। इसके बाद दूसरी अहम बात की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन से आप लोगों को कुछ अहम बातें बताना चाहूंगा। आज इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने अपने गुफ्तगू में क्या कहा है। आपको अगर इससे पहले खबर हो, आपको पता हो कि इससे पहले भी इमरान खान ने मीडिया से बातचीत की थी और वहां पे उन्होंने क्या कुछ कहा था, उसके ऊपर भी जेल सुपरडेंट को वार्निंग दी गई कि इसको मीडिया से दूर रखा जाए। लेकिन इस बार हकीकतन इमरान खान को मीडिया से दूर रखा था। उसकी क्या वजह थी कि इमरान खान ने एक इदारे के सरबराह के ऊपर इल्जाम लगाया कि अगर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार फलां होगा। नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अडियाला जेल में जब मीडिया वाले इमरान खान से बातचीत करने के लिए गए, पहले ओपन थे, पिछले जब अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत हुई इमरान खान की, लेकिन इस बार एक फ्रेम लगा दिया गया था और काफी दूर मीडिया वालों को रखा गया। इमरान खान चेयर में बैठे हुए थे। इमरान खान ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के नुमाइंदों तक वो बात नहीं पहुंच सकी। तो इमरान खान उठ खड़े हुए। जब उठ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मीडिया वालों ने कहा जी सर, आ रही है आवाज। और उसके बाद इमरान खान ने जो बातें की, स्क्रीन को देख के ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू, गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई है। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो वो को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि नाम मेरे लिए लेना गुनाह है। तो ये इमरान खान की गुफ्तगू है। इसके बाद कहा है, बहावर नगर में ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है।
ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। उसके बाद जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ की जाए। बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दी जाए। उसके बाद कहा है मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है। अभी इमरान खान जंगल का बादशाह किसको कहता है ये आप सब बखूबी जानते हैं। बहावर नगर वाकया से साबित होता है मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना ही जमहूरियत है। कर्ज लेने से मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। IMF के कर्ज से मुल्क में मजीद महंगाई आएगी। तनख्वाहदार तबका गरीब आदमी मारा जाएगा। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की नया लहर आएगा, गरीब आदमी मारा जाएगा। सरमायाकारी ना आने से कर्ज और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है और मुस्तकबिल खतरे में जा रहा है। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। बहावर नगर वाकया बताता है कि मुल्क की हालात क्या है। ये बानी PTI जिसने आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने महंगाई के ऊपर भी बातचीत की और जो वाकया बहावर नगर में हुआ था उसके ऊपर भी बातचीत की। लेकिन ऐसा शख्स जो जेल में है, जिसके चारों रास्ते बंद और वो खुद महंगाई के लिए रो रहा है और वो लोग महंगाई के ऊपर हंस रहे हैं। जब इमरान खान ने थोड़ी सी महंगाई की थी तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला था। ये शख्स तकलीफ में है और महंगाई के खिलाफ उसने जेल में रहकर उसके खिलाफ बात की है। आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल का खास ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।